Alright, so I am here to tell you the full story of movie Chhichhore. Who all want to watch a review, please watch some other video and then you can come back here. Although towards the end, I don't mind sharing a bit about what I thought about the movie as a whole. But शुरू करने से पहले एक गाना हो जाए. As you can see, there's an empty chair here and I need someone to play guitar for me. Who would that be? बजा लेते हो? आप शुरू तो करो सर. Okay. दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो भी दिन क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे. Those who are new to my channel, एक बॉस एक सेकंड गिटार बंद करना. I think you need a practice anyway. एटलीस्ट मेरा प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो जाएगा. आपके सिंगिंग का तो वो भी स्कोप नहीं है सर. Anyway, so if you are new to my channel, I want to let you know that I am a documentary filmmaker and I make a lot of interesting videos, 3-minute stories and a lot of other stuff like vlog and stuff. So not just this movie stuff. So even if you don't watch this story till the end, if you have time, do explore my channel. You might find something very fascinating and you might feel like subscribing. आपका स्पीच सर हो गया हो तो हम स्टोरी शुरू करें. तो शुरू मूवी में दिखाते हैं एक हॉस्टल है जिसमें कि नॉक नॉक करता है वरुण शर्मा सुशांत के रूम पे. सुशांत रूम निकलता है, वरुण शर्मा सिर्फ चड्डी में बोलता है क्या करने वाला है. तो वो लोग एक वाटर वेस्ट करने वाला गेम खेलते हैं कि बाल्टी से एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं. दैट इज़ एस्टैब्लिशिंग शॉट. और हमारे टाइम में जब मैं आईआईटी में था तो ऐसा गेम तो हमने कभी नहीं खेला और 2019 के टाइम पे से पानी वेस्ट करने वाला गेम दिखाना नॉट अ ग्रेट आइडिया. बट ठीक है, आई मीन सो वी नाउ नो दैट देयर आर 2 कैरेक्टर्स, वरुण शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत, दोनों की किसी कॉलेज में हैं. एंड देन वी कम टू द प्रेजेंट डे. Okay, so cut to present. If any of you is wondering that कि दूसरे वाले बंदे की शक्ल मुझसे ज़्यादा काफ़ी मिलती है, now we have a slightly older Sushant Singh Rajput and he has a son, and son has just given IIT exam and he's waiting for his results to come out and he's under a lot of pressure कि मेरा होगा कि नहीं होगा, because he has this feeling कि मेरा बाप भी IIT से, मेरी माँ भी IIT से, मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा. And Sushant does not do much to ease his pressure. He's like तूने तैयारी की है तो तेरा तो हो ही जाएगा. एंड ये देखिए शैम्पेन का बॉटल में लेकर आया हूँ और ये बॉटल जो है जब तेरा हो जाएगा तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. एंड यू कैन फील दैट ओ माय गॉड दिस इज नॉट ग्रेट. वी आर ऑल्सो शोन दैट सुशांत की एक्स वाइफ है श्रद्धा कपूर. दैट मीन्स एट सम पॉइंट दे हैड डिवोर्स एंड द किड लिव्स विद सुशांत, बट सुशांत टेक्स द किड to visit Shraddha once in a while. Anyway, so eventually the IIT result come और इस बच्चे का नहीं होता है. And in the stress he jumps from a building. He does not die but he is very critical. उसका brain injury हुआ है और फिर hospital में सुशांत आते हैं, फिर श्रद्धा आती है. The doctor calls them after a few days and says, listen, इसके his body is not reacting to any medicine. It looks like he does not have the willingness to live, क्योंकि patients who have the willingness to live, they sometimes come out even from more critical situation than he is in. At this point, Sushant decides that he is going to tell the story of his own life and Shraddha Kapoor's life from when they were in college, kind of telling him that they themselves were losers even when he thinks that, you know, ये IIT से हैं तो ये लोग loser नहीं होंगे. And that's how the story begins. And Shraddha Kapoor kind of makes fun of this whole logic कि ये क्या मतलब है कि ये कहानी सुना रहे हो. But anyway, you know, he goes ahead and starts the story by introducing Sexa, who is अपना शर्मा. राइट. तो सेक्सा जो है वो है वरुण शर्मा, सुशांत का सीनियर है. सुशांत आईआईटी आता है, जैसे मूवी में आईआईटी नहीं बोला है बट लेट मी एज्यूम दैट वो बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो आईआईटी बॉम्बे का सीन ऐसे भी है तो आईआईटी होगा. तो सुशांत सिंह आता है वहाँ पे और उसको जो हॉस्टल अलॉट होता है, वो जो हॉस्टल अलॉट कर रहा होता है वो बोलता है कि ये सबसे बकवास हॉस्टल है इस आईआईटी में, यहाँ पे सारे लूजर्स और फेलियर जो लोग फेल कर जाते हैं और मतलब निकम्मे लोग रहते हैं, तो तुम चाहो तो चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे दो. तो सुशांत सिंह राजपूत के हॉस्टल में सेक्सा रहता है, वो उसका सीनियर रहता है. और सेक्सा की क्वालिटी और वॉट एवर डिस्क्रिप्शन ये है कि उसको पॉन्ड बहुत पसंद है, वो अपना प्ले बॉय का मस्त कलेक्शन रहता है, एक नंबर का ठरकी है और मास्टरबेट खूब करता है. और एक और सीनियर रहता है उसी हॉस्टल में, उसका नाम है एसिड, और एसिड का डिस्क्रिप्शन और या कैरेक्टर ये है कि वो पूरे टाइम माँ बहन की गाली देता है क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. राइट. सो लिसनिंग टू दिस स्टोरी, द सन कम्स आउट ऑफ कोमा. ही इज स्टिल वेरी क्रिटिकल बट नाउ एटलीस्ट उसकी आंखें खुल गई हैं, ही इज रिस्पॉन्डिंग. सो सुशांत सिंह राजपूत डिसाइड्स टू कंटिन्यू द स्टोरी एंड ही इज लाइक, यू नो, हाउ कूल इट वुड बी इफ I am able to get Sexa wherever he is right now and he has not been in touch.
to come and in this operation theater and ICU, not operation theater, ICU में वो भी ज्वाइन कर ले और हम लोग मिल के इसको अपनी कॉलेज की कहानी सुनाएंगे. Only problem is he does not remember the actual name of Sexa. Like Sexa का नाम क्या था यार? And which is by the way a very genuine problem. Like all of us have nicknames in IIT. I did not get a nickname in the first few years, but by the time I was in 4th year, I had a 5-year course. 4th year, I named myself WhatsApp. WhatsApp. Cool name, right? So yeah, but eventually he remembers the name and he calls up Sexa, who is now a banker in London, and Sexa shows up and then they continue to tell the story together. Carry on. So now we have another character entering the scene, Mummy. Mummy सुशांत का बैचमेट है सेम हॉस्टल में. और we have another character who is slightly negative character. He is प्रतीक बब्बर. प्रतीक बब्बर एक स्टड रहता है दूसरे हॉस्टल का. वो हॉस्टल स्टड हॉस्टल है और एक इंटर हॉस्टल स्पोर्ट्स होता है GC टूर्नामेंट, लाइक लॉट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स अक्रॉस द ईयर, और जिसको फाइनल स्कोर मिलेगा जिस हॉस्टल को सबसे ज़्यादा वो हॉस्टल विनर होगा. तो ये हॉस्टल जिसमें प्रतीक बब्बर है, दे आर द विनर्स. एंड प्रतीक बब्बर काफ़ी different लग रहा है. Like he looked like a very smart guy in this film. Like anyway, carry on. प्रतीक बब्बर की एक स्ट्रैटेजी रहती है कि वो शुरू में जो भी फ्रेशीज आते हैं उनको स्टडी कर लेता है कौन कौन लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, और उसके पास एक जुगाड़ है ताकि वो सारे वैसे स्टड स्पोर्ट्स फ्रेशीज को अपने हॉस्टल में ट्रांसफ़र करा दे. और सुशांत सिंह राजपूत तो ऐसे भी हॉस्टल चेंज करने की जुगाड़ में था, तो वो उसको अप्रोच करता है, बोलता है तू मेरे हॉस्टल में आ जा. लेकिन इस टाइम तक होता क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत फील्स लाइक ही इज़ बॉन्डिंग सो मच वेल विद बोथ हिज सीनियर्स एंड मम्मी. सीनियर्स मतलब कि सेक्सा और एसिड. तो प्रतीक बब्बर को थोड़ा बुरा लगता है. बाय द वे इस मूवी को देखते हुए आपको लगता है कि इस मूवी के मेकर ने शायद स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी होगी, उनको लगा क्या चूतियापा चल रहा है यहाँ पे. लेट अस शो हाउ स्पोर्ट्स रियली इज प्लेड. एंड ये नहीं कि एक ही हीरो सब कुछ खेल रहा है. देयर आर डिफरेंट. सो 100% मार्क्स फॉर द वे विजुअली इट्स वेरी रियलिस्टिक. आई वोंट से स्टोरी वाइज, क्योंकि एज यू विल सी लेटर स्पोर्ट्स को इतना भी भाव कोई स्टड इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं देता. ठीक है ना, गुड टू बी इन स्पोर्ट्स, बट लाइक अ हॉस्टल विच लूजेज इज नॉट लाइक अ लूजर, विच काइंड ऑफ दिस मूवी शोज. ऑलराइट, बैक टू द प्रेजेंट डे. Acid and Mummy in present day, they are also now old. They also join the gang of storytellers and they continue telling the story. और इस बीच में डॉक्टर अभी भी इनको बार बार बोलता रहता है, अरे आपका बच्चा अभी भी क्रिटिकल है, ये स्वेलिंग हो गया है ब्रेन में, वो हो गया है, शायद सर्जरी करनी पड़ेगी. तो वो एक रेपिटेटिव टाइप का सीन चलता रहता है. इसमें डॉक्टर बार बार आके इनको डराता रहता है. लेट्स जस्ट कंटिन्यू द कॉलेज स्टोरी. Take over. Okay, so coming back to the college stories, क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत is staying in his hostel H4. He meets one of the only sports studs of his hostel. His name is Derek. Derek जो है वो 3rd year में है, and सुशांत says, you know, what is this like? We are losers. Can we do something about it? He says, boss मैं अकेले तो 3 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, बट हमारे हॉस्टल में उतना टैलेंट है ही नहीं और सिर्फ हम दो लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते. और डेरेक ये भी बताता है कि बॉस पिछले 15 साल से H4 हॉस्टल हमारा जो है उसने 15 साल से कभी कोई भी एक बार भी नहीं जीता है ये GC इंटर हॉस्टल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट. और फॉरगेट जीतना, हम लोग बेसिकली ऑलमोस्ट ऑलवेज लास्ट आते हैं. तो यू नो इट्स जस्ट टू मच टू डू इट. बट सुशांत सिंह सेज दैट लेट्स ट्राई करते हैं, देखते हैं, यू नो, एंड यू नो वेयर द मूवी इज हेडेड. सो बेसिकली दे ट्राई. यू वांट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट नाउ? ऑलराइट, कट टू प्रेजेंट. अनदर कैरेक्टर ज्वाइंस, उसका नाम है बेवड़ा. वो आता है और अभी तक उसकी स्टोरी इस कॉलेज की स्टोरी में नहीं आई है, लेकिन बेवड़ा एक अच्छा लाइन बोलता है वो ICU में आके कि बेटा मेरा नाम बेवड़ा है, और इतना तो गैस कर ही सकते हो कि मेरा नाम बेवड़ा क्यों पड़ा होगा. और वो चेस का चैम्पियन था कॉलेज में. Now in college, these guys are trying, H4 hostel guys are trying to win different matches, different sports, different games, but सारे एक एक करके हार रहे हैं. So eventually Sushant Singh Rajput comes up with this idea that, you know, the reason we are losing the game is nothing much is at stake. So can we put something at stake? So मम्मी टेक्स द प्लंज. मम्मी बोलता है, मम्मी अपनी मम्मी से काफ़ी अटैच्ड है, तो वो बोलता है कि चलो मैं जब तक ये GC ख़त्म नहीं जाता, जब तक हम लोग जीत नहीं जाते, मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूँगा. सुशांत सिंह राजपूत बोलता है कि ही इज़ नाउ डेटिंग श्रद्धा कपूर. सो वो बोलता है चलो मैं श्रद्धा कपूर से, मैं श्रद्धा कपूर का एंट्री में बताना भूल गया, बट एक पॉइंट पे श्रद्धा कपूर और यू नो इनका चलना शुरू होता है चक्कर. तो ये बोलता है कि मैं श्रद्धा कपूर से बात नहीं करूँगा. अपना सेक्सा जो है बोलता है मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा. और जो एसिड है वो बोलता है मैं माँ बहन की गाली नहीं दूंगा. और जो एक बेवड़ा अभी आया, वो बेवड़ा बोलता है कि मैं दारू नहीं पीऊँगा. और बेवड़े की तो हालत बिल्कुल टाइट हो जाती है, दारू नहीं पीता है वो, और उस चक्कर में उसका बॉडी ले नहीं पाता है. ही एंड्स अप गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड.
एनीवे, सो ये प्लेज लेने के बाद भी कुछ होता नहीं है, लोग फिर भी सारे गेम हारते रहते हैं. तो नाउ सुशांत सिंह सेज, यू नो, हमको अब टैलेंट से तो हम जीतने वाले हैं नहीं, प्लेज देके हम जीते नहीं, तो लेट्स हैव डू सम लाइक बाय हुक और बाय क्रूक. सो ही कम्स अप विथ 3 स्ट्रैटेजीज. पहली स्ट्रैटेजी, वो एसिड से बहुत फाड़ू नारे के नारा लगाने वाले पोएम लिखाता है. जैसे हमारे टाइम पे तो 1 2 3 4 XYZ की हॉस्टल की गांड मार से ही हम काम चलाते थे, और बट सारे हॉस्टल्स को मालूम रहता था, तो इट बेसिकली इवेंट्स आउट. बट इस मूवी में दिखाते हैं कि सारे हॉस्टल वाले वैसे शांत थे गेम के टाइम पे. सो H4 वाले अमेजिंग डिस्ट्रैक्ट करने वाले नारे लगाना शुरू कर देते हैं, और ये जब ये शुरू करते हैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट करना दूसरी टीम को, तो ये लोग जीतना शुरू करते हैं. वेल, वेरी गुड. सेकेंड स्ट्रैटेजी इनकी रहती है कि ये लोग एक पर्टिकुलर गेम के लिए टेबल टेनिस का जो लौंडा रहता है दूसरे हॉस्टल का, उसको ये लोग कॉल करवाते हैं श्रद्धा कपूर से, और रात भर बात करती है वो इससे, और वो बात करता रहता है. उस चक्कर में अगले दिन बड़ी नींद आती है उसको, तो वो ये गेम हार जाता है. और एक और स्ट्रैटेजी रहती है, वो एक बेकार सा है, वो मतलब हाथी के दांत करके बुलाते हैं उसको, लेट मी स्किप दैट. सो ये लोग थोड़े मोड़े ऐसे तिक्रम करके धीरे धीरे जीतने लगते हैं और इनका स्कोर ऊपर आता है. बट देन दे रियली कैलकुलेट, जब इतना टाइम बाकी है अब कमिंग व्हाटएवर हाफ सेमेस्टर में, इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू बीट प्रतीक बब्बर का हॉस्टल. सो क्या किया जाए? दे फाइंड दिस लूप होल की एक गेम है, इट्स अ गुड थिंग, कि वेट लिफ्टिंग का 40 kg कैटेगरी का एक होने वाला इवेंट, और उसमें किसी भी हॉस्टल से कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है. तो अगर वो लोग एक पार्टिसिपेंट ढूंढ ले, कोई भी बंदा ढूंढ ले जो कि 40 kg में फिट हो जाए और वो कुछ भी उठा ले, तो वो जीत जाएगा. तो उनको एक बंदा मिलता है, और दिस guy who is playing this role, I discovered him very recently in some YouTube video, and he happens to actually, he's an IIT Bombay student, maybe right now he's in final year or he just graduated. जो चिंटू है ये 40 किलो वाला, ये किस तरीके से जीत जाता है, तो ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है इनकी. राइट, नाउ द मूवी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड. देयर आर 3 more sports left and all 3 will happen on the same day, and इस पॉइंट पे अब सिर्फ 3 बाकी हैं. तो H4 को गोल्ड जीतने के लिए तीनों जीतने पड़ेंगे, तीनों के तीनों स्पोर्ट्स. तो ये जो 3 स्पोर्ट्स हैं वो हैं, एक रिले रेस है, और एक है बास्केटबॉल, और एक है चेस. बेवड़ा आ गया है चेस में. लेकिन इस पॉइंट पे क्या होता है कि प्रतीक बब्बर हैज फिगर आउट कि ये लोग साले कुछ जुगाड़ लगा के तिकड़म लगा के जीत रहे हैं. तो प्रतीक बब्बर पे तिकड़म लगाने लगता है. तो ऐसे ये जो बेवड़ा है अब तो सोबर होके आया है, लेकिन चेस के जो स्पोर्ट्स के तीनों गेम होने वाले, उसके एक रात पहले प्रतीक बब्बर उसके रूम पे जाके उसको एक गिफ्ट कर देता है दारू की बॉटल, कि वो कैसे कंट्रोल करेगा. और फिर दिखाते हैं अगले दिन सुबह वो लेट से आता है, तो चांद सिंह राजपूत उसका स्मेल करता है, तो मालूम चलता है कि वो दारू पी के आया है. फिर वो गेम खेलना शुरू करता है, लेकिन इवेंचुअली वो गेम जीत जाता है, और दिखाते हैं कि वो एक्टिंग कर रहा था दारू पीने की, उसने दारू नहीं पी थी. जो रिले वाला रेस है उसमें डेरेक अपना दौड़ने के लिए रेडी रहता है, लेकिन दौड़ने के ठूक शुरू होने के पहले प्रतीक बब्बर की टीम वाले एक्सीडेंटली उसके पैर पे वो उसको हर्ट कर देते हैं, और खून निकलने लगता है. तो वो अब डाउटफुल है कि कैसे जीतेगा, लेकिन वो दौड़ता है, और इवेंचुअली रिले में H4 हॉस्टल अगेन विंस. ओनली गेम नाउ लेफ्ट इज बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल में सुशांत सिंह राजपूत ही सबसे स्टड बंदा है बास्केटबॉल प्लेयर का, और काफ़ी क्लोज फाइट करते हैं वो लोग, और लास्ट में H4 लूजेस. एक गेम के कारण वो लोग इवेंचुअली गोल्ड लूज कर जाते हैं. और इस पॉइंट पे जो बच्चा है, जो सुशांत का बच्चा है, आप आगे कहानी सुनाओ. सो द किड इज लाइक, अरे आप लोग इतना मेहनत करने के बाद भी हार गए, सो यू वुड हैव फेल्ट सो बैड, लाइक यू वुड हैव फेल्ट लाइक किलिंग योरसेल्फ, आपने भी सोचा होगा अपने आप को मार लिया. ये लोग हंसने लगते हैं कि नहीं भाई, हमने अपने आप को मारने का नहीं सोचा. एंड देन दे टेल व्हाट हैपेंड आफ्टर दे लॉस्ट द बास्केटबॉल मैच. बताओ. होता ये है कि बास्केटबॉल हार के लोग जा रहे हैं एज अ लूजर्स, लेकिन प्रतीक बब्बर स्टार्ट्स क्लैपिंग एंड ही सेज यू गाइस गेव अ रियली गुड फाइट, इट वाज अ गुड मैच, एंड एवरीवन स्टार्ट्स क्लैपिंग. सो बेसिकली दे से दैट यू नो we were no more losers, because in any case वो लोग last नहीं आए थे. So that was the story, and the son eventually gets the brain surgery, and next year he writes IIT and gets admission. They don't clearly say again if it's IIT, but he goes to a good college apparently. वो college का जो shot देख के, that is this college, इसमें मैंने भी एक pre-wedding film shoot किया हुआ है. पुणे में कौन सा campus है? Symbiosis. एनीवे, सो बच्चा इसमें जाता है, और दे से वेरी क्लियरली, मेरा रैंक मत पूछो, मेरा ब्रांच मत पूछो, आई एम श्योर साले को सिविल नेवाक टाइप कुछ मिला होगा, तभी ऐसा बोल रहा है. सो सॉरी, आई एम बीइंग सो मीन, बट आई एम फ्रॉम सिविल, व्हाट कैन आई से. एनीवे, सो दैट्स द पॉइंट ऑफ द मूवी, एंड आई थिंक तेरा काम हो गया, अब तू कट ले भाई. थैंक्स. लेट मी लुक एट दिस कैमरा, बिकॉज या. सो टॉकिंग अबाउट द मूवी, ओवरऑल द स्टोरी वॉज good, average, good,
not mind-blowing, but a lot of scenes are very funny, very entertaining, and especially it has a very nostalgia shag value, especially if you have been to an IIT yourself, or like I spent 5 years in IIT Madras and the campus looks very similar to IIT Bombay campus. And I think the way they made this movie is that they wrote down some of the things that they want to show कि हम दिखाएंगे कि लोग porn देखते हैं, हम दिखाएंगे कि लड़कियां कम होती हैं but कोई ना कोई तो पटा ही सकता है, हम दिखाएंगे कि प्रोफेसर से बच्चे परेशान रहते हैं. एक्टिंग वॉज ग्रेट एंड ऑल द कॉमेडी वॉज ग्रेट एंड एवरीथिंग वॉज अमेजिंग. म्यूजिक में तो मज़ा नहीं आया. इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर एनी सॉन्ग. स्मॉल थिंग्स फॉर एग्जांपल कि ये नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत, हमको मालूम है उसके पास भी 6 पैक एब्स हैं, तो ये नहीं कि टाइगर श्रॉफ की तरह एक बार 6 पैक एब्स हो गए तो हर मूवी में घुसा दो. वो कॉलेज में रोल प्ले कर रहा है तो उसने दिस सीन लिटरली वेर यू कैन सी दैट उसका मतलब पेट नॉर्मल है. मतलब इट्स नॉट लाइक इज वेरी अनफिट बट ही इज़ नॉट ट्राइंग टू लाइक फ्लॉन्ट हिज एब्स. लाइक मूवी रियलिस्टिक काफ़ी थी. Although story, if you ask me, Three Idiots made you much more emotionally manipulative, and you know that it's not real, and these students at least look more real than Amir Khan and Madhavan and stuff, and yet the story there was, although far-fetched, more emotionally powerful. Here it's okay. I really don't want to rate this movie. I personally enjoyed it, and yet I came away with the feeling that कुछ तो missing था यार. Hi, this is Amrit, your creative, funny, insightful storyteller. I make a lot of videos. I vlog about my life. I make short documentary films. 3-minute stories. Companies, non-profits, startups, schools, universities, they hire me to tell their stories or the stories of those they impact so that they can sell more, raise funds, attract people to work for them. And then there's the second type of stories where I go find amazing individuals doing amazing things, and they don't hire me as such, but I tell their stories because their stories deserve to be told. In fact, you can help me fund those stories at patreon.com/Vatsa. I come from an IIT business consulting background, but after a few years of corporate job, took a break to become a wedding photographer. I still shoot at weddings across India. There is something beautiful about creating art from weddings. There is something beautiful about creating art from anything.